So dear students, today we are going to study force on a moving charge in a magnetic field. So suppose a charge q moves with velocity v. This is a charge. ये चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है जो किसी वेलोसिटी इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड. एंड सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज like this from left side to right side. So we can write here, this is the direction of magnetic field. So it makes an angle, this charge particle makes an angle theta with the magnetic field. So from experiment it is found that the charge q experience a force F. The charge q experience a force F such that the observations are, first point is the force is directly proportional to the magnitude directly proportional to the magnitude of the magnetic field. That is, F is directly proportional to B. And second observation is the force is directly proportional to the charge. The force is directly proportional to the charge Q. Means that is, we can say charge Q, that is force is directly proportional to charge Q. And the third observation is the force is proportional to the component of the force is proportional to the component of the velocity v in the perpendicular direction of the field. That field is B. So that is, F is equal to, we can say F is directly proportional to V sine of theta. So we can see here, this is the component of this velocity, that is v sine of, this is x axis and this component is v sine of theta. So these points are very close to each other, and this charge was Q. The force experience is F. So we can write force like this. We will apply here rule to find out the force. This is, this is z direction, this is x direction, and this is, we can say, y direction. So we can write on combining these two equations, we can find out on, we can say, combining the above factors, we get, हम तीन इक्वेशनों को, इनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन ऑफ थीटा, एंड देन रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन, on removing proportionality sign we can get here F is equal to q v sine of theta, and the value, suppose on removing proportionality sign we will introduce here k, and the value of k, let us suppose 1. So I can write here F is equal to k q v sine of theta, and if k is equal to 1, then the equation becomes like this. So if we will explain it further, then as the
as the direction of force F is perpendicular to both velocity and magnetic field V, so we can express force as F is equal to Q into V क्रॉस V। हम फोर्स को जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मूविंग चार्ज पार्टिकल को, तो वो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो let us discuss its special case. Number 1, first case, we can say case first. If V is equal to 0, then force is also equal to 0. Means आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा था ये F is equal to Q into V क्रॉस V, और ये जो फॉर्मूला था दैट इज वी साइन ऑफ थीटा। और जिन बच्चों को फॉर्मूले का नहीं पता है दे कैन राइट लाइक दिस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, एंड एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 हियर, एंड थीटा दिस इज वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सो हियर वेलोसिटी इज 0, इफ वेलोसिटी इज 0 देन फोर्स इज 0, मीन्स इफ एनी फैक्टर इज 0 हियर then force will be 0, मतलब velocity 0 है then force is also 0। इसका मतलब क्या हुआ? So thus a stationary charged particle does not experience any force। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स जो होगी आपके पास दैट इज ऑल्सो 0। लेट अस डिस्कस सेकेंड केस नंबर 2। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और वी कैन से theta is equal to 180 degree, then force is again it is 0। मीन्स आप जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे v साइन ऑफ थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, सो फोर्स अगेन 0। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। सो देयरफॉर फोर्स विल बी 0 इफ थीटा इज 0 डिग्री। मीन्स जो आपके पास चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, जैसे आपने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था अभी, जैसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये चार्ज पार्टिकल था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था। अगर चार्ज विद वेलोसिटी v, अगर चार्ज पार्टिकल ये इसी डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स इफ v इज पैरेलल टू द b मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा विल बी 0 डिग्री, तो साइन 0 विल बी 0, साइन 0 इज 0। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाए तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो फोर्स अगेन इट इज 0। तो हमने अभी डिस्कस किया कि थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री देन फोर्स इज 0। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इट इज 0 बिकॉज साइन 0 डिग्री इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। सो इसका मतलब वो कि से चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल चाहे पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर लेट अस डिस्कस केस नंबर 3। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फोर्स विल बी इक्वल टू QVV साइन ऑफ 90 डिग्री। So sin value of sin 90 is equal to 1. Sin 90 is equal to 1. Then force is equal to QVV and sin 90 is equal to 1. So it becomes QVV. तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगी QV। Thus a charge particle experience the maximum force. This we can say this is the maximum force.
तो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल is moving perpendicular to the magnetic field, then theta is equal to 90 degree and sin 90 is equal to 1, so it will experience the maximum force, that force is equal to qv। तो हमारे पास ये 3 केस हमने डिस्कस कर लिए और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आपको जो चीज दिख रही है आप अपने हाथ को वैसे रख दोगे। जैसे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रही हैं क्योंकि ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप दिस इज फोर्स फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में आप this is the Fleming left hand rule, means these 3 fingers are mutually perpendicular to each other. This indicate force, this thumb indicate force, and this first finger indicate field, and this indicate moving charge particle, that is current, we can say current। so force field current। तो जो चीज आपको जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको अप्लाई करना यहाँ पे बहुत ईजी है। जिस डायरेक्शन में जो चीज ऑलरेडी है वहां रख दो। जैसे फोर्स फील्ड, तो फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में, तब इस फिंगर को यहाँ इसके ऊपर रख दो। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, इस फिंगर को ऐसे रख दो, इसका मतलब फोर्स ऊपर की साइड लगेगी। इसका मतलब जो फोर्स लगेगी दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, ऊपर की साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब है कि स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट 2 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द 4th finger points in the direction of magnetic field, then central finger in the direction of current, then thumb gives the direction of force on the charge particle। so this is Fleming left hand rule। तो यहाँ पे Fleming left hand rule अप्लाई की हमने। so next अगर हम इसको आगे डिफाइन करें, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। अगर आपके पास मान लो कि आपसे पूछा जाए कि डिफाइन फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको डिफाइन करना उस टाइम। तो अगर आप डेफिनेशन से देखें तो वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं आप, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर डिफाइन करनी है तो B इज इक्वल टू एफ वाई क्यू वी साइन ऑफ थीटा। अगर फोर्स आपके पास ही फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ऐसा ही सिस्टम है। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, देखते चलिए आप। और अगर मान लो आपकी जो वेलोसिटी है, चार्ज आपके पास फोर्स 1 न्यूटन हो गया, चार्ज आपके पास 1 कूलम हो गया, और आपके पास बचा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा आप ले लीजिए 90 डिग्री। मीन्स आपके पास ये 90 डिग्री में मूव कर रहा है जो चार्ज पार्टिकल है। तब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये चीजें हमने यहाँ पे फिलअप कर दी। तो आपके पास आएगा 1 न्यूटन, नीचे आ जाएगा 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, और साइन ऑफ 90 डिग्री। तो आपके पास बचेगा 1 न्यूटन, 1 एम्पियर और 1 मीटर। ठीक है, 1 कूलम मीटर पर सेकंड, मतलब चार्ज बाई टाइम इज करंट। चार्ज 1 क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, सो दैट इज 1 एम्पियर। और आपके पास मीटर बच गया, साइन 90 वैल्यू आपके पास 1, या यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये चीज़ आ गई आपके पास 1 एम्पियर, और मीटर बच गया आपके पास 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट, पहले यूनिट लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू, मींस ये जो चीज आई आपके पास दैट इज 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, किसके बराबर आपके पास? 1 टेस्ला के बराबर, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ चार्ज क्यू या चार्ज 1 कूलम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। चार्ज 1 कूलम मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो यहीं से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फोर्स, टू द मैग्नेटिक फील्ड, experience a force of 1 Newton, experience a force of 1 Newton. So this is the definition of 1 Tesla. So this was about force on a moving charge in a magnetic field. So student, next video में मिलते हैं. Thank you.